नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज भाषा की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज द चार्ल्स एफ हॉकेट write two books. Okay, first one is the a course in modern linguistics 1958, and the another book's name is Animal Language and Human Language 1959, and that books included the 16 characteristics. But among the 16 characteristics we have to discuss here only the 5 characteristics. So these books he told about the what is the difference between the human language and animal language. The both differentiate how the design features. So first is arbitrariness, productivity, creativity and उत्पादकता, and fifth is cultural transmission, cultural preserving or सांस्कृतिक हस्तांतरण. So let's deal with one by one. So first one is arbitrariness. It means यादृच्छिकता. In these characteristics, there is a do not have one-to-one connection between the object and sound. So in all the words, in every object have different names. So the first one is like example of ni hao in Chinese. Okay, मतलब आप कैसे हो हिंदी में, चाइना में नी हाओ, उड़ीसा में ओए के मेती ओछो, and so in this in English how are you, मराठी में तुम्ही कसे आहात. So every language have different name and according to the objects also. So there is a do not have any connection with object and sound or symbol. So now we move to next characteristics is displacement, in Hindi called विस्थापन. In characteristics how animal different the human language, it means the human can speak about the future, past and any event that's happened, and then any object or any person that's do not have in present, so he or she can describe about that object or person. But opposite of animal can't speak about the any object or any animal can't express the present, future, sorry, he can express the symbol in present but not the future or past. और वो अपने अनुभव, अपनी फीलिंग्स वो नहीं बता सकता है, लेकिन उसके अपोजिट इंसान उन चीजों को बता सकता है कि जो अनुभव, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस वो बता सकता है, लेकिन एनिमल्स नहीं बता सकते हैं. So now we move forward the third characteristics, that is called the duality of patterning, double articulation and Hindi called द्वि उच्चारण. So हमें नाम से ही पता चल रहा है कि द्वि उच्चारण है, डबल आर्टिकुलेशन है. तो इसमें हम सेंटेंस, वर्ड्स और फोनिम के लेवल पे हम रीअरेंज कर सकते हैं. अगर हम बोल रहे हैं बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट, तो हम गॉट द बुद्धा इनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं. इस सेंटेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं, बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट इन हिस्ट्री, इस तरीके से. एंड वी कैन in one word enlightenment how we can analyze in 3 parts, in
lighten or meant, like this. In sounds also we can differentiate and we can analyze. In each and every word have different pronunciation in different words structure. So all these things including in duality of patterning. But opposite of animals can only limited sounds, यानी context, idioms, proverbs, अलंकार, मुहावरे, कहावतें और अनगिनत हम शब्दों को डिकोरेट कर सकते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चमचे से चटनी चटाई. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी. क्रिएट किए है ना, उसमें कुछ क्रिएशन किया है शब्दों के द्वारा, रिपीट हो रहे शब्द, तो कुछ एक नया क्रिएशन कर दिया है. जैसे मैंने कहा था कि मेरे एक दोस्त ने, बहुत सारे लोग हैं उसमें से उसको दारू पीने जाना है, तो वो अपने कंटेक्स्ट में एक शब्द बना लिया है, जल प्राशन करने जाना है. वाह क्या बात है, मतलब लोग भी समझेंगे नहीं ना कि जल प्राशन करने जा रहा है. वाह. दूसरा, जब उसको सिगरेट पीनी हो तो वो बोलता है कि ऑक्सीजन लेने जाना है. सो दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज. वी कैन मेक our codes. So this is the productivity or creativity of language. But animals can't do that. वो क्रिएशन नहीं कर सकते हैं. वो वही जो प्रेजेंट में सिंबल्स हैं उनके पास, बस उन्हीं का थोड़ा प्रयोग करके, अगर उनको भूख लगी होगी तो बताएंगे कि एक सिंबल के द्वारा वो बताएंगे कि हाँ उनको भूख लगी है. बट इंसान कह सकता है कि मुझे पर्टिकुलर, हाँ मुझे वेज बिरयानी खानी है, मुझे नॉन वेज बिरयानी खानी है, मुझे वेज कोफ्ता खाना है, मुझे मिक्स वेज खानी है. ये पर्टिकुलर चीजें ह्यूमन कैन एक्सप्रेस बट नॉट द एनिमल्स. दिस इज द डिफरेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल in these characteristics. So now we want to go, fifth characteristics is cultural transmission, cultural preserving, in Hindi called the सांस्कृतिक हस्तांतरण. In these characteristics, the culture and how the culture is coming to in human, इसमें आर्किटेक्ट, पेंटिंग्स, ये चीजों को वो जैसे जो हाथ से जो मटका बनाते हैं उनके साथ जो शब्दावली जुड़ी हुई होती है वो नई पीढ़ियों को ट्रांसमिट करते रहते. जो फॉकटेल से जो दादा दादियों ने बताई थी, ये जो कहानियां हैं वो आने वाली पीढ़ियों को हम इंसान भाषा के द्वारा देते हैं. लेकिन इसी के कंपैरिजन में जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स इन चीजों को नहीं ट्रांसमिट करते हैं, बस लिमिटेड संकेत ट्रांसमिट करते हैं. लेकिन कल्चरल हेरिटेज जो है, जो सांस्कृतिक जो कलाएं, संस्कृति, परंपराएं, तो इन सारी चीजों को वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो इंसान है वो सारी चीजों को एक नए तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. प्रिजर्वेशन यानी संवर्धन करके रख सकते हैं, लेकिन प्राणी नहीं कर सकते. तो ये डिफरेंस है बिटवीन द ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड एनिमल लैंग्वेजेस. तो ओके, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए. अगर आपको नॉलेजेबल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें.